Karizma, you ready? हाँ Karizma, हाँ दादा। are you ready? हाँ। Are you happy? नहीं। Yes or no? नहीं। Very good. उसने नहीं कहा था। ओ नहीं किया था, क्यों? ओके, बाद में दादा, बात करें। किसके साथ झगड़ा हो गया आज? मम्मी के साथ। ओ, मम्मी को भी मामी के घर जाने का है। हैं? नहीं। ओके मोनिका। सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચિદાનંદ પાયલ માસી. ઓકે, 9 કલમો બોલીએ. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे सॉरी, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માને કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુઆ પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુઆ પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને દુઆ પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને હે દાદા ભગવાન મને હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ના किया जा करने की परम शक्ति આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति किंचित मात्र પણ अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કોઈનો કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને વધુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગ ધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દસમાં ગુમાનપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમજથી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ अवनवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. શ્રેયા શુદ્ધાત્માપતિ પ્રયત્ન. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવાત્મામાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતા કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વે દોષોની આપને સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ન કરો એવી આપને પરમ શક્તિ આપો. આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અવિરત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. હું તમારામાં અવિરત સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાય. શ્રેયા. જય સચિદાનંદ. નમો વીતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વાયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વસાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચ એસો નમુકારો, સવ
सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके श्रेया, डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जिन मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी बात मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे दादा भगवान, ये हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, मैं मैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे शुद्धात्मा दादा को न पलगो दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा को न परमानेंट दक्ष टेम्पररी। हे शुद्धात्मा दादा को न प्योर दक्ष रिलेटिव जय सच्चिदानंद। के श्रेया। એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી. के चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સच्चिदानंद। जय सच। Hey, Deepak Dada, are you there? Deepak Dada? Okay. आज श्रेया। Yeah, I'm there. ओके। कितना दिन से आप आए, तो आज को आपको ओके हैप्पी है आप? एक मिनट हैप्पी है? जय सच्चिदानंद बोलते हैं, घर में प्रेयर किया, एक्सरसाइज किया। श्रेया। जय सच्चिदानंद। मैं आज हैप्पी हूँ कि मैंने सब प्रेयर की थी खाने से पहले, और नॉर्मल प्रेयर भी मैंने सबको घर में जय सच्चिदानंद बोला था। मैंने एक्सरसाइज भी की थी और मेरा स्टडी का स्केड्यूल भी वेरी फॉलो गुड, हुआ था। वेरी गुड।
So you get A grade for Friday? Very good. Monica? Monica? हाँ जी सचिदानंद, आज मैंने एक्सरसाइज की थी और आज मैं हैप्पी हूँ। और साथ ही आज मैंने सभी को जय सच्चिदानंद बोला था। और मैं खाने से पहले 3 टाइम्स मैंने प्रेयर की थी। और जो आज मैंने स्टडी भी की थी, जो मैंने शेड्यूल बनाया था। Okay, A grade for Friday. Very good. Charisma. हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं एक्सरसाइज नहीं की थी और आज मैंने घर में सबको जय सच्चिदानंद बोला था। और खाने से पहले आज मैंने प्रेयर नहीं की थी। और मम्मी के साथ क्या हो गया था? मम्मी ने मुझे काम दिया था तो मैंने कहा मम्मी मैं नहीं करूंगी। कल भी ऐसा किया था आपने? हाँ? हाँ? क्या आप कल भी ऐसा किया क्या था? दादा? यस्टरडे भी वो आपने वो ऐसे ही बोला था ना? क्या आप दादी दादी माँ हो गए अभी? नाम चेंज करने का है मोनिका? छोटी है तो दादी माँ, छोटी दादी। ओके दक्ष? जय सच्चिदानंद, आज मैंने सबको जय सच्चिदानंद बोला था। मैंने एक्सरसाइज करी और खाने के पहले 3 बार प्रेयर करी थी। और कल मेरा हिंदी का पेपर है तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी थी। आप आज हैप्पी मेरा है? हैप्पी है? मैं हैप्पी भी हूँ। आपका ग्रेड ए है? हाँ। वेरी गुड। पिताक्षी बा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने आज एक्सरसाइज की थी, प्रेयर किया था, खाने से पहले सबको जय सच्चिदानंद बोला था। वेरी गुड। और स्टडी में? और स्टडी में आज नहीं कर पाई थी क्योंकि कल पुराना है तो उसकी तैयारी में मम्मी को हेल्प करवाई थी। Okay, that's acceptable. So you get A grade too? हाँ आपको A grade आज? हाँ। Very good. Okay, everybody A grade. करिश्मा तो छोटी है तो आपको जाने देगा अभी, ओके? तो मम्मी को ऐसे नहीं बोलने का, ओके? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपका। माया माया और माया में कितना प्रॉब्लम आपने मिस्टेक देखा? श्रेया? श्रेया श्रेया? श्रेया? श्रेया सुनाई देता है? नो? हाँ, अब सुनाई श्रेया? देता है। ओके श्रेया। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व नहीं किया। मोनिका? मोनिका? माया के बारे में बताना है। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, माया 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 में कितना मिस्टेक देखा? आज मम्मी ने जो काम दिया था तब मुझे अंदर से ऐसा नहीं कहना है और बाहर से मैंने नहीं कह दिया था। और बाद में उस समय अज्ञान हुआ था, बाद में मैंने ज्ञान का इस्तेमाल किया और बाद में हाँ कह के काम किया था मम्मी ने जो काम दिया था। ओके, मम्मी को सॉरी बोलने का होता है। दक्ष? हाँ दादा मुझे नहीं पता है। ओके। पिताक्षी बा? हाँ मैंने आज ऑब्जर्व नहीं किया था। नो मिस्टेक्स? हाँ आपने मिस्टेक नहीं किया सारा दिन में? आपको सब कुछ करने का था, वो हो गया? हाँ मिस्टेक तो नहीं की थी आज। देखो अभी एवरीडे जो स्केड्यूल है ना, वो जो करने का है देन योर ए ग्रेड, ओके?
ओके, शेषदास आपने सुना, थोड़ा रिपोर्ट तो अच्छा था, एवरीबडी गॉट ए ग्रेड। गुड। अभी खाने के पहले प्रेयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एवरीथिंग इज गुड। तो अभी हम शेषदास, एक आई फाउंड ए, आपके जस्ट बैकग्राउंड के लिए एशियन हेल्थ टिप, ओके, उसमें you can review this. We've done the first page just for your information. Just review it. Oh, second page. Oh, the second page. We can't hear you. हाँ हाँ, अभी लास्ट पेज में जाने का है। सॉरी, हाँ, 15 नहीं आया था। दिखाई देता है ना? ओके, ये दोनों हो गया। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सो यू नो कि आप तो डॉक्टर है ना, और ये फूड फूड इज द थिंग। सो अभी 16 से कंप्लीट करने का याद। ओके ओके, तो ये संस्कृत में इताक्षिबा पढ़ेंगे, और इंग्लिश में चिन्हाई है उधर, मैंने कहा। हाँ ओके हाँ ओके ओके, इताक्षिबा नंबर 18। हाँ 16 ना। हाँ 16, सॉरी 16। नित्यं सर्वरसा भक्षया। ओके, मैंने कहा। हाँ, take the food that has all six tastes: the ओके salt, sweet, bitter, sour, astringent, and pungent. ओके, वेरी गुड। आपको तो सब मालूम है, पर तो भी शैलजा जी, यू वांट टू से समथिंग? वी बीन टॉकिंग दिस लॉन्ग, बहुत दफा बातें किया, बट फ्रॉम डॉक्टर्स व्यू पॉइंट, हेल्थ व्यू पॉइंट, आपको कुछ ऐड करने का हो वेल, हम जानते तो हैं कि षडरसी भोजन लेना चाहिए, हमारी कलम भी है, मगर फिर भी हमारे में से कोई भी षडरस का बैलेंस लेके भोजन सचमुच में लेता है क्या? ये एक देखने जैसी बात है। आर वी रियली डूइंग दैट? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति में हम एक या दूसरे के प्रति इम्बैलेंस, टेस्ट के प्रति इम्बैलेंस होते हैं। और इसके पीछे एक आयुर्वेदी एक और संतुलन यानी बैलेंस का सिद्धांत है। और दादाजी ने तो कितनी सारी बात बताई। हम सबको स्वीट ज्यादा पसंद होता है, तो दादाजी ने बोला स्वीट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, मैंने पचन में जो कड़वा होता है वो सबसे जल्दी पचन होता है। तो हम जो मानते हैं उससे बिल्कुल उल्टा ही है ना। तो कहने की बात यह है कि हम जानते तो बहुत कुछ है, मगर हमारी प्रकृति के ऊपर हम क्या तटस्थ भाव से देख सकते हैं कि भाई सचमुच में प्रकृति ये कर रही है या नहीं कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है। एक ऐसी बात है कि दवाई तो डॉक्टर के पास से बहुत अच्छी गोलियां या तो फार्मेसी में से लेके आए, मगर हम लें तभी ना। नहीं तो ओके, दैट्स ऑल। हाँ ओके, इताक्षिबा नेक्स्ट वन। हाँ, जठरं पुरैर्धर्म अनरे जलेन च वायोसञ्चारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्। वेरी गुड, मोनिका। हाँ, fill your stomach half with solids, a quarter with liquid, and rest, leave it empty. शैलजा जी। यस, तो ये
कहीं से भी हम ले ले, आयुर्वेद से या हेल्थ से ले या दादाजी के सिद्धांत से, उनोदरी के सिद्धांत से भी हम ले, तो आयुर्वेद ने बताया कि भाई अपने पेट यानी जिसे हम जठर कहते हैं या होजरी कहते हैं, स्टमक कहते हैं, उसके यदि हम चार भाग गिने तो आधा ही भाग हमारे खुराक से, मैंने सॉलिड फूड से भरना चाहिए। वन फोर्थ प्रवाही जो हम लेते हैं, और वन फोर्थ वायु के हलन चलन के लिए मुक्त छोड़ना चाहिए। तो वायु के हलन चलन के लिए यदि हम जगह नहीं रखेंगे तो फिर क्या होता है, तो बोले खाने के बाद आफरा आ गया, पेट पकड़ना पड़ता है, इधर उधर होना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। और दादाजी ने यही चीज दूसरे तरीके से भी बताई कि भाई भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए, उनोदरी की जो बात दादाजी ने की है, तो उसमें ये सिद्धांत समाविष्ट हो जाता है। सब तरीके से एक बात सब बिल्कुल साफ है कि हम जितना ले सकते उससे कम लें, वो न केवल लंबे जीवन के लिए उपकारी है, स्वास्थ्य के लिए उपकारी है, जागृति के लिए उपकारी है, मन वचन, माइंड बॉडी सोल तीनों के लिए वो हेल्पिंग है। तो आपने उनोदरी बोला, ये किसी को यस। मालूम है दादा ने? नहीं, उनोदरी में क्या बोला था इताक्षी भाई, आपको मालूम है? ओके, तो वो जरा समझाना। हाँ, उड़ोदरी का मतलब ऐसा है कि जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाइए, ताकि आपको लगे कि अभी भी थोड़ी भूख बची है, या फिर अभी भी खाना हो तो खा सकते। मैंने 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए, 2.5 रोटी खाइए, 1.5 खाली छोड़ दीजिए। तो उस प्रकार से आम तौर पे हमारा सबका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि पसंदीदा चीज बना दी तो हम जरूर भूख से भी थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, ओवर फीडिंग जिसे बोलते हैं। और पसंद नहीं है तो फिर हम पता नहीं क्या किससे पेट भरते हैं। मगर कहने का मतलब है कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना, उसका नाम अणोदरी है, ताकि हमें खाने के बाद भी लगे कि अभी भी थोड़ा भूख या थोड़ा खालीपन पेट में बाकी बचा है। और दादाजी ने बोला कि उपवास करने से भी उणोदरी करना बड़ा तप माना जाएगा, क्योंकि खाने की थाली पर वो बैठा है और उणोदरी मैंने संयम से खा रहा है। वो स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पिंग है, मनोबल के लिए भी हेल्पिंग है, आत्मा के लिए भी हेल्पिंग है। मालूम पड़ गया, उनोदरी बहुत शब्द आएगा फ्यूचर में आपके लिए। इट ओके। लेस देन हंगर, उसका मतलब सिंपल करे तो इट लेस देन हंगर। तो एक क्वेश्चन, आप तो डॉक्टर है, तो बच्चे लोग को भी इट्स इज वेरी हेल्दी लाइक दैट? यस, सबके लिए है ना वो तो। नहीं, क्योंकि दे आर ग्रोइंग, उन लोग को तो खाना मोर बोले ना, मिलता है कंपेयर टू मी। यस, वो खाने की कोई तकलीफ नहीं है, मगर जितना भूख है, जितनी कैपेसिटी, उससे थोड़ा कम खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, उसका बॉडी में यूज अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, मालूम पड़ गया चिल्ड्रन। हाँ। ओके, इताक्षी बा। हाँ। भुक्त्वा भुक्त्वा शतपथं गच्छेत् यदीच्छेत् चिरजीविताम्। मोनिका। हाँ, never sit idle after taking food. Walk for at least half an hour. शहजान जी। हमारे में से कितने लोग खाने के बाद चलते? मैं तो नहीं चल पाता हूँ, सुबह में चलता हूँ जरूर आधा घंटा, मगर खाने के बाद चलने वो कई कुछ ना कुछ फाइलें लगी रहती है मन में, तो चलना चाहिए आइडियली। यस, खाने के बाद 20-25 मिनट, आधा घंटा चलना चाहिए, ताकि मूवमेंट स्टमक और इंटेस्टाइन की डाइजेशन को सबको हेल्प मिले। मगर बहुत कम लोग हमारे में से करते होंगे, करना आवश्यक है, नक्की करना चाहिए हमें। इताक्षी बा। हाँ, आगे ना।
19। 19 क्षुत्सा धृन्ता जन्यति। मोनिका। हाँ, hunger increases the taste of food. In other words, eat only when hungry. ओके, प्रशांत जी। हम ज्यादातर आदत से खाते हैं, भूख से नहीं खाते हैं। इतने बज गए, खाने खाने का टाइम हो गया, इतने बज गए, खाना है। नहीं भूख है अंदर तो पूछते भी नहीं है। तो ये कहना ऐसा चाहते कि जब सचमुच में भूख लगती है, बॉडी व्हेन इज रियली डिमांडिंग, तो खाना भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा, पचन भी अच्छा होगा। मगर आदत से जब हम खाते जा रहे हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, तो कई बार स्वाद तो ठीक है, मगर खुराक पचन हजम होने में भी तकलीफ करता है। सो ये जो है कि भाई जब बॉडी रियली हंग्री है तभी खाएं आप। फिर उसमें कंसेप्ट है सूडो हंगर। सूडो हंगर का मतलब है जब हम ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, शुगर वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो बॉडी मांग मांग करती है। वो भूखी नहीं होती है तो भी मांगती रहती है, अधिक 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 अधिक। दैट्स नॉन एज ए सूडो हंगर। उसके उससे वजन भी ज्यादा बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, ओबेसिटी, कई रोग होते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत बहुत महत्व का है कि जब हमारी जठर में, शरीर में भूख से अग्नि प्रदीप्त हो, जठराग्नि बोलते हैं उसको, तभी हमको खाना खाना चाहिए, लेना चाहिए। और आजकल तो आप बच्चे हैं, आपके लिए नहीं है, बट एक सिद्धांत समझना जरूरी है कि भाई क्या अपने लिए उपकारी है। हम ओके। तो आदत से भी खाते हैं, और कुछ ऐसा संजोग मिल गया, समोसा आ गया, दाल वड़ा आ गया, ये आ गया, फ्रेंकी फ्राई आ गया, तो भूख है कि नहीं, अंदर अंदर डाल देते हैं। बात सही है ना? हाँ, हाँ। एक खुशी उधर है मोनिका। हाँ, नहीं, उसकी खुशी। तबीयत ठीक नहीं पानीपुर है इसलिए। पानीपुर खुशी है उधर। नहीं दादा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रेस्ट कर रही। ओके, उसको पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, तो पानी पूरी खाती है, बहुत खाते हैं क्या कम खाती है? दादा, एनीवे, मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ ओके, तो आपको जवाब दो। हाँ, जब मैं खाना कितना भी खा लिया हूँ, अगर मुझे पानी पूरी दिख जाती है और मिल भी जाती है, तब मैं और खा लेती हूँ। उस समय ऐसा नहीं सोचती हूँ कि भूख है या नहीं। या दैट्स टिपिकल। और जब आप बाहर जाते हैं हाँ, तब एक्स्ट्रा खा लेते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खा लेती और ओके, बाद में घर जाके सो जाते हैं। हूँ। हाँ, ओके, ओके, वेरी गुड। अभी एटलीस्ट ऑल दिस टिप्स, children, please remember that. Okay, this is all healthy, healthy, healthy. Okay, next one. हाँ, 20. चिंता चिंता जरा नाम मनुष्याणाम। Monica. Monica. हाँ, worrying speeds up aging. Oh, अभी तो डॉक्टर आ गया, बोलो डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये तो बहुत तरीके से प्रूफ हो चुका है। अपने में बोलते हैं ना, चिंता चिता समान। तो चिंता चिता समान काम करता है। मैंने कई सारे नुकसान, और वृद्धत्व, जरा मैंने वृद्ध होना, तो वृद्ध होने की स्पीड बढ़ जाती है चिंता मैंने स्ट्रेस से। और साइंटिफिकली भी बहुत साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च भी की है कि चिंता और स्ट्रेस से
कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, नर्व्स न्यूरोनल चेंजेस होते हैं, रोग भी होते हैं, क्रोमोसोम्स जीन्स में भी चेंजेस होते हैं। तो अभी एक दिल्ली में एम्स इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने वहां पर एक रिसर्च किया कि भाई आज 35-40 ईयर्स के लोगों को क्यों हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो उनकी रिसर्च में एक चीज उनको ये जानने को मिली कि उनकी जो क्रोमोसोमल एज, इंटरनल एज थी, वो बाहर की एज, बायोलॉजिकल एज 35-40 थी, मगर इंटरनल या तो क्रोमोसोमल एज 65-70 हो चुकी थी। तो अंदर से वो वृद्ध हो चुके थे जब हार्ट अटैक वगैरह आने लगा। और उसकी एक बड़ी रीजन स्ट्रेस या तो तनाव, जो जिसमें चिंता भी सम्मिलित होती है, वो था। तो अपने दादाजी ने तो इतने गोल्डन चीजें सरलता से दे दी है। तो वो एक केस जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, 35-37 का आदमी, ऑलमोस्ट डेड लाया गया था उनकी हॉस्पिटल में। ही इज अ कार्डियक सर्जन है वो खुद आदमी। फिर उन्होंने मेहनत करके बचा लिया। फिर वो फॉलोअप में आए तो ढूंढने लगे कि भाई इसकी लाइफ में क्या है। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि उनकी वाइफ के साथ उनका बहुत अनबन रहता था, स्ट्रेस रहता था, वाइफ आती नहीं थी उनके साथ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की उनकी वाइफ को कि भाई जो भी है 3 महीना मेरी रिक्वेस्ट सुन के आप उनको लेके आया करिए हॉस्पिटल में, और कुछ मत करना। तो 3 महीने में वो हिल मिल के मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट सब हो गया। तो उन उसके ही रिसर्च में मिला था कि ऐसे चिंता या स्ट्रेसेस से कितने सारे रोग आते हैं। इंटरनल बॉडी एजिंग बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, जो ये यहाँ बताते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनि बहुत सालों पहले ये सब जानते थे। साइंस आज उसको टेस्टिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। ये वो चलिए ध्यान आगे। ध्यान रखने का। अ, अभी टाइम नहीं है तो बच्चा वी नीड डिस्कस, चिंता होती है कि नहीं, क्यों होती है। एनीवे 21। हाँ, शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानमाचरेत्। मोनिका। हाँ, when it is time for food, keep even 100 jobs aside. वो तो सब करते हैं बच्चे लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। छोड़ देते खाने का आया था। ओके, लास्ट वन। सर्वज्ञेषु माध्यमाम्। ओके, आया नहीं है, आई विल रीड इट। Choose always the middle path. Avoid going for extremes in anything. सुनाई दिया शैतान जी? हाँ, वो कहना ये चाहते हैं कि दादाजी ने जो बात बताई ना, अबाव नॉर्मल इज फीवर, बिलो नॉर्मल इज फीवर, कम टू नॉर्मल, ये बात है इसमें कि हर कोई चीज में दूसरा एक वाक्य, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज में एक्सेस में या तो एक्सट्रीम्स पर हम जाएंगे तो वो नुकसान करेगी। तो गीता में भी यही बात कृष्ण भगवान ने बताई थी कि भाई जो आदमी उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, अपने व्यवहारों में, संबंधों में, सब जगह पे नॉर्मल, मैंने मध्यम बैलेंस्ड रहता है, वो न केवल ये वर्ल्ड में, दुनिया में सुखी होता है, मगर मुक्ति की तरफ भी जाता है। दादाजी ने अलग शब्दों में ये बात बताई कि भाई अबाव नॉर्मल भी नहीं, बिलो नॉर्मल भी नहीं, कम टू नॉर्मल, मैंने मध्य मार्ग, बैलेंस्ड में आ जाओ। बुद्ध ने भी यही बताया था, मध्यमा मार्ग बोलते हैं उसको। तो सीधी सादी बात है कि जीवन में कोई भी चीज में हमें बिलो नॉर्मल या अबाव नॉर्मल नहीं, पर नॉर्मालिटी, मध्यम मार्ग से चलना है। गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा खा लिए तो भी तकलीफ, डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा। और बाधा ले ली कि भाई नहीं अभी तो मैं खाऊंगा ही नहीं, तो भी तकलीफ, तो भी मन बुमा बुम करेगा। सो कम टू नॉर्मल, मध्यम।
Okay, so very good. अभी वर्कोहॉलिक, एडल्टों के लिए वर्कोहॉलिक बहुत वर्क करते हैं तो भी तकलीफ, वर्क नहीं करते आलस बहुत करते हैं तो भी तकलीफ। सो बोलते हैं कम टू मिडल पाथ, मध्यम। जय श्री कृष्ण। दरिया क्या आपको क्वेश्चन था? दादा उसमें कहा था कि when it is time for food, लेकिन कहता है कि सिर्फ भूख लगने पर खाना है। हाँ, सो टाइम फॉर फूड का मतलब ये है कि जब सचमुच में भूख लगी, खाने का समय, मैंने खाने की जरूरत हुई, उस हिसाब से टाइम नक्की किया है। नहीं कि हमारी आदतों के हिसाब से, या तो ये टाइम हो गया इसलिए खाना ही है। वो उसका अलग महत्व है। वो रिदम के लिए और नियमितता के लिए, बॉडी क्लॉक के लिए उसका महत्व जरूर है। मगर यहाँ खाने का टाइम, मैंने जब भूख लगी, जब वो टाइम से हम खाते हैं, उस बारे में मैंने कहने का मतलब, खाने के समय सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, बाकी की सब चीज बाजू पर रखिए। जो दादाजी ने बताया कि भाई खाते वक्त चित वहां हाजिर रखे, फिर ऑफिस में मत चले जाइए, फिर क्रिकेट ग्राउंड पर मत चले जाइए, फिर फ्रेंड के घर मत चले जाइए, ये बात है। ओके जय ओके सच्चिदानंद। दरिया। ओके चिल्ड्रन, देखो हम अभी कितना दिन से we are doing happy, sincerity, or we concentrated on health, Yep. food and exercise. Okay, तो अभी मंडे से we'll go sincerity and on studies. Okay, so वो जरा सोचने का, happiness, sincerity in studies. Okay, क्योंकि ये तो बहुत पक्का हो गया। और क्विकली अभी 2-3 मिनट एनीबडी शेयर करने का है। ये 22 पॉइंट्स था, उसमें से कुछ आपको क्या अच्छा लगा? 1, 2, 3 whatever। मोनिका। हाँ, मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब हम खाना खा लेते हैं तब हमें हाफ एन आवर वॉकिंग करनी चाहिए, और साथ ही हमें नॉर्मलिटी में रहना है। जब भी भूख लगी तभी खाने का होता है। ओके, नो ओवरऑल अभी तो 22 में से आई नो फर्स्ट वन आपने क्या बोला था मेरे को याद नहीं अभी। हाँ। नहीं, और साथ ही जब हम देखो खाना ये खाते हैं उसके बाद स्ट्रेटनिंग। हाँ। ओके, खुशी है उधर नहीं है ना? ओके हाँ, श्रेया, वो श्रेया। हाँ कि जब हम खाते हैं तब हमको फॉर्मेलिटी में रहना चाहिए, और फिर हमको वॉक करना चाहिए, और हमको च्यू करना है, और फिर खाना है, फटाफट नहीं खाना। ओ वेरी गुड, आपको याद है। तो अपना गोल्डन रूल क्या है, किसी ने बताया? नहीं, दक्ष। हाँ, कि अपन को खाने के पहले प्रेयर करनी चाहिए। वेरी गुड, हिताक्षी बा। हाँ, मुझे ये समझ में आया कि हमें, अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो हमें दूसरा खाना आगे नहीं खाना चाहिए। फिर हमें हमारी जो नींद होती है वो अच्छे से पूरी करनी चाहिए। फिर मुझे ये समझ में आया कि हमें एक्सरसाइज सारी जो करनी होती है वो स्लोली स्लोली करनी होती है। फिर हमें अगर च्यू करते हैं तो एकदम गोट की तरह एकदम धीरे धीरे च्यू करके खाना है, और हमें सारे टेस्ट लेने हैं जब हम खाते हैं तो। वेरी गुड, आपका मेमोरी वेरी गुड है, गुड, कीप इट अप। और फाइनली अपना गोल्डन रूल क्या है खाने के लिए, किसको ये मालूम है? हम्म, मोनिका। आ, खाने से पहले प्रेयर बोलने का, साथ नहीं ही नहीं सिक्स नहीं, डेज गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, वॉट एवर। कम्स इन योर प्लेट, उसे हमें खा लेने का। ओके वेरी गुड। ओके, हैव अ गुड वीकेंड। और जरा सोचना, सिंसेरिटी एंड हैप्पीनेस इन स्टडीइंग। ओके, ये अभी वो आपको हेल्थ में को अभी पक्का हो गया है, आज को सबको एक ग्रेड है, वेरी गुड। ओके, तो हैव अ ग्रेट वीकेंड। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ओके।